we have three different types of language translator. The number one is known as assembler. Second language translator is known as compiler. And third language translator is known as interpreter. What are language translators? Language translators are the software that translate source code of high level language or assembly language into object code of machine language. ठीक है बेटा, we need some translators. इन ट्रांसलेटर का काम क्या है? It translate the source code written in high level language or assembly language into object. अब इसमें सबसे पहले we study assembler. Assembler is a language translator. ठीक है, assembler is a language translator that translate source code of assembly language. अब आपको इसके स्टेप्स पढ़ने हैं कि असेंबलर कैसे काम करता है. बड़ा सिंपल सा वे है उसको देखने. सबसे पहले व्हाट वी डू, वी राइट डाउन द सोर्स कोड in assembly language. Then we pass this source code to assembler. अब assembler क्या करता है बेटा? Assembler scans whole source code for error. ये पूरे सोर्स कोड को देखेगा इस केस के अंदर कोई एरर तो नहीं है. अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं. ये हो सकता है कि आपके सोर्स कोड में कुछ एरर्स हों और ये हो सकता है कि आपके सोर्स कोड में कोई एरर नहीं. तो अब क्या होता है कि इस एरर, अगर आपके सोर्स कोड में कोई एरर हो गया तो आफ्टर स्कैनिंग होल सोर्स कोड इट विल प्रोड्यूस एन एरर रिपोर्ट. And you need to use code editor to edit the code to remove the errors. जब आप एरर को रिमूव कर दोगे तो फिर सोर्स कोड दोबारा कहाँ आ जाएगा? assembler के पास. assembler will again scan the source code for error. हाँ, इसमें अगर कोई एरर नहीं हुआ तो ये क्या होगा? इधर आ जाएगा और अगर एरर हुआ तो दोबारा एरर रिपोर्ट देगा. एंड देन यू विल अगेन open this source code in code editor and you will again remove the errors, edit the source code, and then this process will continue until there is no error. If there is no error, then your source code, your language translator will translate the source code in object code. And then it will save the file. So you will obtain an executable file. Right? And then you will execute the code.
If you want to execute the code again, there is no need to perform all these steps. You will just execute the executable file. Okay? You don't need to translate the source code again, scan the source code for error or anything. Are you getting it, beta? मेरे बच्चों, Yes, sir. assembler के स्टेप समझ में आए? What we say, assembler scans whole source code for error. Suppose you have written 100 lines, ठीक है? And there are error in line number 5 and line number 20 and line number 19. ठीक है? अब assembler क्या करेगा? Assembler start scanning the source code line number 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 पे जैसी error मिलेगा, it will note it down the error, but it will continue scanning the source code. फिर वो 5 से 6 पे जाएगा, 20 पे आके फिर एरर मिलेगा, वो उसको नोट कर लेगा, फिर वो कंटिन्यू रहेगा, 99 पे रहेगा, उसको नोट कर लेगा, और फिर एट द एंड इट विल चेक दैट इज देयर वाज एनी एरर. अगर कोई एरर था, अगर कोई एरर था, तो वो क्या कर देगा, एरर रिपोर्ट दे देगा और आपको दोबारा सोर्स कोड को एडिट कर देगा. एंड इफ देयर इज नो एरर, देन इट विल ट्रांसलेट. तो आपका कोड कब ट्रांसलेट होगा? व्हेन इट इज एरर फ्री. और जब कोड ट्रांसलेट हो जाएगा, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट कोड को आप सेव कर लोगे, तो आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी. द एडवांटेज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज दैट you don't need to translate it again and जी again. सर. Done. इसके बाद हमारे पास the second translator is, we have the second translator which is you can say compiler. अच्छा, what we do, firstly we write down the source code in high level language. High level language, ठीक है? Then this source code is sent to compiler. Compiler scans whole code for error. ठीक है? फिर वो चेक करता है इज एट द एंड इज एरर यस. तो ये क्या करता है, इसको एरर रिपोर्ट दे. फिर ये कोड आप भेज देते हो कोड एडिटर में, और वहां जाके आप कोड को क्या करते हो, करेक्ट करते हो, दोबारा ये आता है. इफ देर इज नो एरर, तो फिर ये कोड क्या होता है, ट्रांसलेट होता है. क्या बन जाती है आपके पास, ऑब्जेक्ट कोड. आप क्या करते हो, इसको सेव कर देते हो, तो हमारे पास आ जाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल. राइट? जब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आप अगेन एंड अगेन इसको एग्जीक्यूट कर. Yes, beta. What is the difference between compiler and assembler? हेलो बच्चों, क्या डिफरेंस मिला कंपाइलर और assembler में? सर वो हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है. बस बस इतना डिफरेंस है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज का है और ये लो लेवल. ठीक है? नो. अच्छा, इंटरप्रेटर का हम क्या करते हैं बेटा, ठीक है? अच्छा भाई, सोर्स कोड है, सोर्स कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज. देन दिस सोर्स कोड इज सेंड टू
इंटरप्रेटर। ठीक है बेटा, इंटरप्रेटर क्या करता है, स्कैन्स वन स्टेटमेंट फॉर एरर, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को चेक करता है एरर के लिए। ठीक है, अच्छा, इफ इज एरर, अगर एरर आता है तो ये क्या कर देता है, एरर रिपोर्ट देता है। और फिर आप एडिटर के पास जाते हैं और ये कोड आप एडिटर को देते हैं। अच्छा, अगर कोई एरर नहीं है तो फिर क्या होता है, ये ट्रांसलेट होता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाता है। सर इसमें एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं बनती। इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा। उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, इंटरप्रेटर के पास वो स्टेटमेंट जाएगी, वो स्कैन करेगा उसको और फिर चेक करेगा। बल्कि मैं इसको, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट स्कैन होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्कैन होने के बाद देखेगा कि उसमें एरर है। अब सपोज क्या, यू हैव रिटन 100 लाइन, लाइन नंबर 1 में अगर एरर हुआ तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 में अगर एरर नहीं हुआ तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जहां पर इसको फर्स्ट एरर मिलेगा वहां पर क्या होगा, ये प्रोसेस को स्टॉप करेगा और एरर रिपोर्ट देगा। ठीक है ना। अब ये तीन आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक है आपके पास असेंबलर, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। अब हमें देखना होता है कि व्हेन शुड वी यूज असेंबलर, व्हेन शुड वी यूज कंपाइलर एंड व्हेन शुड वी यूज इंटरप्रेटर। तीनों की एप्लीकेशन डिफरेंट है। Sir. इंटरप्रेटर में पूरा कोड नहीं पढ़ रहा है, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम पढ़ रहा है। इंटरप्रेटर के अंदर पूरे कोड को ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बना रहा है। तो अगर आपको दोबारा ये कोड एग्जीक्यूट करना है तो यू नीड टू ट्रांसलेट इट अगेन। जितनी मरतबा आपको कोड चलाना है उतनी मरतबा आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कंपाइलर के अंदर यू विल ट्रांसलेट इट ओनली वंस। ठीक है, और एक दफा ट्रांसलेट कर दिया और फिर उसके बाद दोबारा कभी आपको ट्रांसलेट करना नहीं पड़ेगा। Developing a program written in a low-level language. Akbar is developing a program written in a high-level language. Alex is preparing a program written in a high-level language for sale. ठीक है, स्टेट विथ रीजन विच टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यस बेटा। Sir. बोले। Sir, can he use an interpreter because then he can also check his work as he goes? सर नहीं assembler यूज होगा। ना मेरा बच्चा, अकबर तो इंटरप्रेटर यूज करेगा बिकॉज It's a यस high level ईमान, language. इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो अपना मोहिब, हम अकबर की बात करेंगे। अच्छा अकबर की, मुझे लगा एलिस की बात कर रहे हैं। हाँ, हम अकबर की। ठीक है, तो अकबर तो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ईमान ने बिल्कुल करेक्ट बोला है। बट जैना, व्हाई नॉट कंपाइलर? Sir, because he can like check his work with the interpreter if there's like a mistake. हाँ, तो डेवलपमेंट स्टेज में वी यूज, तो फाइंडिंग एरर्स इज इजियर ना। अदरवाइज वो पूरे कोड को पढ़ के फिर आखिर में एक एरर रिपोर्ट देगा। इसमें क्या होगा, जैसे जहां पे एरर मिलेगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यस एलेक्स, व्हाट अबाउट एलेक्स? Sir, a कंपाइलर। compiler because she's gonna sell it, so then she doesn't have to like. It'll be like the file will be Source read. code don't need to be distributed, Yeah. right? So source code will be hidden, secure, and alias assembler because for assembly language we use assembly. ठीक है बेटा, ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर आप ये देखो कि
आप देखें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ें ईमान, सर कंपाइलर यूज होगा। पढ़ें तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ लें ईमान। Yes, sir, compiler. भाई Sir, भाई because बोल रहा है कि sir quickly. उसे क्विकली एग्जीक्यूट करना है, पहली बात तो ये बोल रहा है। दो बातें, पहली बात तो ये बोल रहा है कि क्विकली एग्जीक्यूट करना है, और सेकेंडली क्या है कि Machine मशीन कोड code. चाहिए, है ना, मशीन कोड चाहिए। तो मशीन कोड तो आपका कंपाइल्ड वर्जन में ही मिलेगा, इंटरप्रेटर वर्जन में नहीं मिलेगा। एक्सीलेंट हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन दोबारा है, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि बोथ एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कैन बी यूज्ड व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोग्रामर वुड मेक यूज ऑफ बोथ ऑफ इंटरप्रेटर। अब आपको इसको वही वही बातें सारी करनी है, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरप्रेटर के बता देना, 2 पॉइंट ऑफ कंपाइलर के बता देना कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज इंटरप्रेटर विल बी यूज्ड सो एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड क्विकली एंड करेक्टेड। After removing all the errors, compiled version compiler will be used to prepare an executable file, so no need to distribute source code. हाँ, इस तरह के आपको point। अब ये देख लें बेटा, ट्रांसलेट लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। हाँ बेटा मेरे बच्चों, लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन Assembler, कोड। sir. असेंबलर मेरा बच्चा। ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। Both compiler and interpreter. शाबाश। प्रोड्यूस एरर मैसेज। Interpreter. असेंबलर एरर मैसेज नहीं देगा, Yeah. कंपाइलर नहीं देगा, तीनों देंगे, राइट। अच्छा ये अगर वो बोलता है, अगर ये बोलता है एरर मैसेज सून एज इट एनकाउंटर्स इट, तो आप बोलते हैं इंटरप्रेटर। अगर वो बोलता है कि एट द एंड ऑफ द स्कैनिंग होल डॉक्यूमेंट, तो फिर आप कंपाइलर और असेंबलर देंगे। लेकिन उसने बोला एरर मैसेज तो देगा, तीनों देंगे। ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज वन लाइन एट अ टाइम। हाँ बच्चों, वन लाइन एट अ टाइम। मेरे Sir, बच्चों, interpreter. इंटरप्रेटर। और प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल Compiler. Compiler. एंड असेंबलर, दोनों के अंदर हमने देखा था ना, भूल गए। दोनों ने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई थी, कंपाइलर ने भी और असेंबलर ने भी, इफ यू रिमेंबर। ये देखें, एग्जीक्यूटेबल फाइल कंपाइलर भी बना रहा था, एग्जीक्यूटेबल फाइल असेंबलर भी बना रहा था। सही है बच्चों, इज इट क्लियर?